Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fantastically good. Students, after getting a huge and a very good response to our quick revision series, today I am taking up not a quick revision but a detailed discussion of audit committee corporate governance. Why so, ma'am? अचानक से ये chapter? Guys, let me tell you all, there are small minute amendments when it comes to this chapter. सो आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड रिवीजन ऑफ ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स which are relevant for May 22 examination. So ma'am, whether the quantum of the amendments is way too high? No guys, it is not that extreme, but yeah, छोटे छोटे amendments है which are of worth value. हो सकता है ये छोटे छोटे दिन में चेंज किए हैं, कमिटी के जो फ्रेमवर्क होते हैं उसके मेंबरशिप में चेंज किए हैं, एप्लीकेबिलिटी में कुछ तो चेंज आया है. सो ये सारा चीज आज हम लोगों को आपके साथ डिस्कशन करना है. So before we start the discussion, let me tell you all, we have already completed a super quick revision of standards on auditing which is there on the playlist of this channel. Please go through that. Secondly, I have also taken a super quick revision of company audit, accounts, dividend and LLP. Also go through that. Thirdly, I am taking this session today for you all. In case you have any further doubts or you have any other chapters on priority, you can comment in the comment section below. Also guys, ये सेशन आपके लिए रिविजन है. अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट अभी भी वीक है, यू कैन जॉइन माई फास्ट ट्रैक बैच विच जस्ट स्टार्टेड टुडे, दैट इज 15th of January. So this is a fast track batch for May 22 examination which is going to start from, which was about to start from 15th of January, जो आपके सारे amendments के साथ होने वाला है. And also students, I want you all to understand the flagship program as well which we have launched for you all. You can very well apply the code AuditSAR and take up the subscription either for plus or iconic sessions. ठीक है, चलिए. सो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की एंड पढ़ना शुरू करते हैं ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस. So guys, audit committee corporate governance. When we talk about corporate governance, we very well understand कि यहाँ पे हम कोई ऐसी बातें करने वाले हैं जहाँ पे कंपनी का गवर्नेंस हो, कुछ सुपरविजन के बारे में बात है. So यहाँ पे this very chapter has multiple things for listed entities. Why ma'am only for listed entities and the material subsidiary? Because listed entities are the company involving huge public interest. आपका, मेरा, हम सबका पैसा पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टेड, लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टेड होता है ना. शेयर्स आप भी खरीदते हो, हम भी. तो इन दिस मैनर जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इस लिस्टेड कंपनी का गवर्नेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, came up and has given us various corporate governance का regulation. तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये रेगुलेशन पढ़ना है. चलो, so there were many issues which were faced in the listed companies and these issues are addressed in the LODR. What is LODR? LODR is listing obligation and disclosure requirement. So what are the issues, what are the matters addressed in this? So here in this LODR regulation, they have fixed point number 1, the key functions of board. Point number 2, management's discussion, vigil mechanism, ऑडिट कमिटी की क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग, पावर, कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ द सब्सिडरी कमिटी, प्रोसीजर्स विच रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द कमिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, देयर डिस्क्लोजर्स, information which are required to be given to the shareholders, information which are required to be certified by CEO, CFO and a compliance certificate which is required to be taken from either a statutory auditor or a practicing CS of the company. So these are the matters which are addressed. मैम कहाँ लिखे हैं और कैसे लिखे हैं? Via regulation. Via regulation they have addressed these matters. Now point number 2, applicability. This LODR is applicable to whom? Obviously this LODR is applicable to the listed entities. मैम listed over stock exchange. मैम कौन सी सिक्योरिटी? Any security जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट हो, IDR हो, GDRs हो, यूनिट्स हो, डिपॉजिटरीज हो, एनी सिक्योरिटी रिसीट्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हो, वेदर दे आर लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड और SME सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट. गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हियर देयर इज एन अमेंडमेंट. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट है, दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट. मैम कब देंगे ये? पहले, बिफोर अमेंडमेंट दिस वाज विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. अब यहाँ पे अमेंडमेंट आ चुका है गाइस,
This is updated and 15 days is now made 21 days from the end of the quarter. Mark it very important for MCQ. So corporate governance का रिपोर्ट कब देते हैं? क्वार्टरली रिपोर्ट देते हैं फ्रॉम द क्लोजर ऑफ क्वार्टर विद इन 21 डेज. नेक्स्ट मैम, इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर? द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज टू वेरीफाई द फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन. मैम, हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं क्या? नहीं. हियर वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन, बट रैदर वी आर गोइंग टू सी कि जो रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो कंपनी कर रहा है, एंड फैक्चुअली हम लोग ये चीज बताएंगे. हियर आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी, नीदर आई एम टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. हम लोग मैनेजमेंट के बारे में भी नहीं दे रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे अबाउट द फ्यूचर वायबिलिटी, कोई ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देते हैं. हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने वाले हैं फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टार्टेड, ऑडिट कमेटी. अब ऑडिट कमेटी पढ़ने से पहले आपको दिमाग में आएगा कि मैम सेबी में जो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट दे करके रखी है, ऐसी रिक्वायरमेंट तो हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ी है 177. तो व्हाट इज द डिफरेंस? चलो पढ़ लेते हैं. कंपनीज एक्ट में 177 कहता है द कंपनीज विच आर लिस्टेड कंपनी एंड द फॉलोइंग क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी है, जैसे कि जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, लोन आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स 50 करोड़ या इससे ज्यादा है, लोन एक्सीडिंग 50 CR, जो बोरोविंग्स है एक्सीडिंग 50 CR है, तो इन कंपनीज को ऑडिट कमेटी फॉर्मुलेट करनी होगी. मैम सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी शुड कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी विथ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स. एंड हाँ, इतना ध्यान रहे, आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स ये लोग कहते हैं 2/3 मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. मैम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? वो लोग कहते हैं मेजॉरिटी फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. यहाँ पे एक और पॉइंट आता है गाइस, इफ एट ऑल द कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट शेयर्स, in that case the company shall constitute audit committee comprising of all independent directors. सारे के सारे directors in this committee must be independent directors. Superior right shares का मतलब क्या होता है? These are those shares having more than 1 votes which can range from 2 to 10 votes. That is one share giving you the authority to have 2 votes which can range up to 10 votes. All the members in the audit committee must be financially literate and at least one must be financial expert. यहाँ पे वो लोग कहते हैं majority including chairman must be able to read and write the financial statement, read and understand the financial statements. So this is a core differentiation. अब आता है as per SEBI द एनुअल जनरल मीटिंग के हिसाब से और क्या क्या रिक्वायरमेंट है. और पहला बोलता है चेयरमैन जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल जनरल मीटिंग टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द शेयर होल्डर्स. कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी. यू कैन ऑल्सो इनवाइट द अटेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ऑडिटर्स. इनको बोल सकते हैं कि सर आप ऑडिट कमेटी की मीटिंग आकर के अटेंड कीजिए, क्योंकि हम इस ऑडिट कमेटी की मीटिंग में इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, रिस्क एरियाज ऐसे सब डिस्कस करने वाला है, तो यू कैन अटेंड दैट मीटिंग. ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? साल में 4 बार होनी चाहिए विद अ गैप ऑफ मैक्सिमम 120 डेज. कोरम कितना होना चाहिए फॉर ऑडिट कमेटी मीटिंग? 2 और 1/3 विच एवर इज हायर प्लस मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोरम फॉर दैट मीटिंग. व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी? सारा का सारा पावर देकर के रखा है, इन्वेस्टिगेशन का, सीकिंग इन्फॉर्मेशन का, आउटसाइड लीगल एडवाइस ओन कर सकते हो, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर्स. What are the roles of audit committee? Roles of audit committee का मतलब क्या है? Roles of audit committee का मतलब है 2 चीजें आगे पढ़ाने वाली हूँ. Roles का मतलब है ये आपकी जिम्मेदारी है. फिर आगे और एक चीज आएगा mandatory review areas. तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो करना ही करना है. सो 2 अलग अलग चीजें हैं गाइस. हेडिंग पे ध्यान देना. रोल्स में क्या आएगा? बहुत सारी चीजें बताइए. रोल्स में भी एक पॉइंट ऐड किया है, हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन मार्क करो, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशन किया है मॉड्यूल में. एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में क्या आता है? सबसे पहला ओवरसाइटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस. यू नीड टू, मतलब ऑडिट कमेटी नीड्स टू बी श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सफिशिएंट एंड क्रेडिबल. भरोसेमंद है, इनफ और सही है. करेक्ट, सफिशिएंट एंड क्रेडिबल. रिकमेंडेशन देना ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑफिसर, इन सब के लिए. नेक्स्ट, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. जो फंड्स आपने रेज किया है वाया आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यूज, उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं ये चेक करना. इंडिपेंडेंस चेक करना.
स्क्रूटिनी करना ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म सही तरीके से चल रहा है क्या? व्हाट इज विसल ब्लोअर मैकेनिज्म? दैट इज अ विजिल मैकेनिज्म व्हिच सेफगार्ड्स अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन। जो भी ग्रेपवाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, ये मैकेनिज्म, ये पॉलिसी सही से चल रहा है ना? Approval of the appointment of CFO, उनके qualifications, disclosure of related party, also reviewing before submitting the financial statements for the board signing. You also need to review the matters which are included in director's responsibility statement. ये मैंने Companies Act में पढ़ा करके रखा था। As per section 134, director's responsibility statement में क्या क्या लिखा होना चाहिए? Changes, major accounting estimates, adjustments which are made, compliances with the legal and the लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, मॉडिफिकेशंस अगर ऑडिट रिपोर्ट ने किया है तो ये सारा मैटर रिव्यू करना और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड के पास भेजना फॉर साइन टू रिव्यू मिस्टर ब्लोअर मैकेनिज्म। इसके बाद कैरिंग आउट एनी अदर फंक्शंस एज मे बी मेंशन, रिव्यूइंग द यूटिलाइजेशंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहले नहीं था, अब उन्होंने एड ऑन किया है तो वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। रिव्यूइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एंड और एडवांसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी एक्सीडिंग ₹100 CR or 10% of the asset size of the company, whichever is lower, including the existing loan, advances and investment। मतलब क्या, उन्होंने मटीरियलिटी का एलिमेंट डाल दिया है। कोई भी छोटा मोटा अमाउंट रिव्यू नहीं किया तो चलेगा, एटलीस्ट इतना अमाउंट हो जाए ना तो आपको इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन चेक करना है आपको, मतलब किसको? ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट, considering and comment on the rational cost benefits and the impact of the scheme involving merger, demerger, amalgamation, acquisition। मतलब क्या, अगर कोई कंपनी कोई दूसरी कंपनी को ओन कर रहा है, डिसइन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑडिट कमेटी का रोल यहाँ पे भी होगा। कंसिडर करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि जो परचेज कंसिडरेशन कंपनी दे रहा है, इज दिस इनफ या फिर इज दिस ओवर एंड अबव, क्या ये वैलिड है, फाइनेंशियली वायबल है, ये सारा चीज आपको करना रहेगा। आपको मतलब किसको? ऑडिट कमिटी को। ठीक है, चलो दैट वर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं मैंडेटरी रिव्यू एरिया, ये तो करना ही करना है। मैंडेटरी रिव्यू एरियाज बाय ऑडिट कमिटी क्या करेंगे? सबसे पहला, द डिस्कशन एंड द एनालिसिस ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, related party transactions, internal control weaknesses letter received from the statutory auditor or the internal auditor of the company, internal audit reports, removal, appointment of the internal auditor, chief internal auditor, statement of deviation wherein the company has raised funds for a purpose and if the company fails to use the funds for the purpose for which it was taken, there comes the deviation। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन कि हम लोगों ने पैसा रेज किया था फॉर एक्सपांशन, हम लोगों ने ये पैसा कर लिया है फॉर द पेमेंट ऑफ लोन्स, तो ये सही नहीं किया है। Quarterly statement of deviation along with the monitoring agency if applicable, annual utilizations of the fund for which it was stated, ये सारा चीज करना। These are the mandatory review areas। इसके बाद आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट टाइम इसके ऊपर एमसीक्यू देखा गया था दिसंबर 21 के आरटीपी में, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे। चलो फोकस करते हैं। आज इसके ऊपर दिसंबर 21 में मेन क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, एज एन ऑडिटर यू शुड वेरीफाई, व्हाट यू शुड वेरीफाई, पॉइंट नंबर 1, द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोली में कितने जन हैं और कौन कौन है। थ्रू आउट द रिपोर्टिंग period, the board of directors should comprise of at least one women director and more than at least 50%, more than equals to 50% NED. What is NED? Non-executive director. Non-executive director. Yeah. अब वो लोग बात करते हैं एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। नाउ व्हाट इज टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज? बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन द कंपनी का रैंकिंग इज मेड। इतना ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वंस दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। मतलब क्या, अगर आपने इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, फिर अगर आपकी रैंकिंग टॉप 1000 के नीचे भी चली गई ना, फिर भी मैडम को रखना ही चाहिए। सो वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। अनलाइक सेक्शन 135, वहां पे हम लोग बोलते हैं 3 साल तक क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो अभी कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स in the board actually depends upon the chairman, how the chairman is.
If the chairman is non-executive, then more than equals to 1/3 people should be independent directors. If the chairman is not non-executive, then at least 1/2 should be independent. Non-executive, but he is a promoter or a related person to any person, then 1/2 must be independent. अभी जो रिलेटेड पार्टी है इसको यहाँ पे तारा लगाओ, तारा जमीन पर. हु डू यू अंडरस्टैंड द पर्सन एज अ रिलेटेड पार्टी? जैसे कंपनीज एक्ट में मैंने पढ़ाया था, रिलेटेड पार्टी मीन्स, यहाँ पे कैसा डेफिनेशन सिखाया था मैंने आपको, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, सिबलिंग्स, स्पाउस, as well as the spouse of your lineal descendant, including all step relation. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप रिलेशन, एक्सक्लूडिंग स्टेप डॉटर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि यू आर द रिलेटेड, या फिर जो भी पर्सन है रिलेटेड, ही इज ब्रदर इन लॉ एंड दैट ब्रदर इन लॉ इज अ चेयरमैन. अरे बॉस, ब्रदर इन लॉ इज नॉट अंडर द रिलेटिव का डेफिनेशन, सो वो यहाँ पे नहीं आता है. हम लोग वहाँ पे 1/3 की रिक्वायरमेंट लगाएंगे, ना कि 1/2 की. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सो ब्रदर इन लॉ हमारे रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है, सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है. मेक श्योर यू ऑल रिमेंबर दिस. अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड को कितनी बार मिलना है? बोर्ड को मिनिमम 4 टाइम्स विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज. टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को मिनिमम 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं. नो डायरेक्टर कैन कंटिन्यू or appoint any person as a non-executive director which has attained the age of 75 years unless special resolution पास किया है. In top 500 listed entities, the chairman, पहले ही ऐसा होता था, CMD होते थे. What is CMD? CMD का मतलब होता था चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर. तो चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर तो CMD कहते थे हम इसे. अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, in top 500 listed company, the chairman cannot be managing director. The chairman has to be non-executive director and not to be related to MD और CEO ऑफ द कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. एक पर्सन कितनी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकता है? एज पर कंपनीज एक्ट, अ पर्सन कैन एक्ट एज ए डायरेक्टर फॉर 20 कंपनीज, फॉर मैक्सिमम 20 कंपनीज. कंपनीज एक्ट कहता है ऐसा, एंड पब्लिक कंपनी उसमें से 10-10 का क्राइटेरिया था. सेबी के लिए वो लोग कहते हैं अ पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड या फिर नॉट बी अलाउड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर फॉर more than 7 listed entities, independent directors for more than 7 listed entities. बस मैक्सिमम इतना 7 कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो. बट हाँ, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हो कहीं कोई कंपनी में, तो आप मैक्सिमम 3 कंपनीज में आईडी बन सकते हो. Minutes of the board should be checked to verify whether the director is an executive director or a non-executive director. नेक्स्ट, इन द लिस्टेड कंपनी हैविंग स्पेशल राइट शेयर्स, जो इस कंपनी में स्पेशल राइट शेयर्स है, उस कंपनी में एटलीस्ट 50% आईडी होने चाहिए ऑन द बोर्ड. व्हाट इज आईडी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एनुअल डिस्क्लोजर शुड बी सबमिटेड बाय द डायरेक्टर्स. इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड. इसका इम्पैक्ट बताना रहेगा चेयरमैन के साथ साथ. इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट हैव और हैड, उनका कोई पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. विथ whom? विथ कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी. इनके साथ इनका कोई भी मटेरियल पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन ना है, ना पिछले टाइम होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट प्रीवियस 2 years. Independent directors or with his relative should not be a material supplier, lessor, lessee, service provider, एंड उनका कुछ 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए. तो ही तो वो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट कैसा होगा? नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस ऑफ द डायरेक्टर. क्या ऑब्लिगेशन है ऑफ द डायरेक्टर? एटलीस्ट 4 times मीटिंग इन अ ईयर विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 days बिटवीन द 2 मीटिंग. कोरम ऑफ 2000 लिस्टेड एंटिटीज कितना होना चाहिए? 1/3 और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ऑडियो वीडियो मीन्स से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलाउ किया गया है कोरम में अटेंड करना. The director shall not be a member in more than 10 committees. The director shall not be allowed to act as a chairman in more than 5 committees across all the listed companies in which he is a director. Ma'am, this company as well as this committee, ये कौन सी होगी? समझाती हूँ. The companies will be all the public company, whether it is listed or it is unlisted. This will not include
द प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, हाई वैल्यू डेट एंटिटीज, ये सारी कंपनीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. नॉट दिस विल बी एक्सक्लूडेड. ठीक है मैम. कमिटीज में कौन सी कमिटीज आएगी? कमिटीज में सिर्फ 2 ही कमिटीज आएगी गाइस, ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस सॉल्विंग स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, SRC. ठीक है, तो ओनली दीज कंपनीज, ओनली दिस कमिटीज शैल बी कंसिडर्ड व्हेन वी आर काउंटिंग 10 में मेंबर्स, 5 में चेयरमैन. The minimum information shall be placed before the board of directors. Senior management shall make the disclosure to the board relating to all the material, financial, commercial transactions, अपना खुद का जो person interest है, so on and so forth. Very important point added in your module newly. The independent directors of the listed company shall hold at least 1 meeting in the financial year without the presence of non-independent directors, and the members of the management and all the independent directors shall strive to be present in such meeting. वो बोलता है independent directors जो भी है ना हमारे बोर्ड में, एटलीस्ट एक मीटिंग तो ऐसी फाइनेंशियल ईयर में करे ही करे विथ द मैनेजमेंट वेरिन देयर इज नो नॉन इंडिपेंडेंट पर्सन इन्वॉल्व. ठीक है, चलो अब आगे रेम्यूनरेशन. भाई मुद्दे की बात बताओ, पैसे कितने मिलने हैं? अभी पैसे जितने भी मिलने हैं, जो भी पिक्यूलर ट्रांजैक्शंस है, जो भी क्राइटेरियाज है ऑफ मेकिंग द पेमेंट, जो भी एलिमेंट्स है ऑफ द पैकेज, जैसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है, वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, पर्क्स कितना है, बोनसेस कितना है, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि स्टॉक ऑप्शन, जो भी हम लोगों को स्टॉक ऑप्शन की डिटेल्स मिल रही है, ये सब कुछ हम लोगों को बताना रहेगा. ये सारा का सारा पैकेज का जो ब्रेकअप है, ये सब कुछ हम लोगों को हमारे वेबसाइट पे डिस्क्लोज करके रखना होगा एनुअल रिपोर्ट. नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन. द फीस और द कमीशन पेड बाय एनएडी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट बी recommended by board. It is not by, it is to. Must be recommended by board, plus it should be approved by shareholders. The stock options granted to NED shall be specified. Basically members के resolution के वाया specify होने चाहिए. If at all the remuneration to a single NED is more than 50% of the total remuneration shall be approved by the members, and if the remuneration of executive directors is more than, मतलब it is 5 crore or 2.5% of the net profit, whichever is higher, or the aggregate amount to all the directors is more than 5% of the net profit, so there should be a special resolution passed for the same. So executive director के लिए ये लिमिट है, अगर ये क्रॉस होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. एनईडी के लिए ये लिमिट है, अगर ऐसा नहीं है, इस ये क्रॉस होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट. व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कंपनी शैल ले appropriate code of conduct that how the management of the listed entity should be working. सारे के सारे board of directors should affirm that yes, they agree to follow this code of conduct. There is a portion in your module stating कि लास्ट ईयर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट इज सेम, करंट ईयर इज सेम. लास्ट टाइम उन्होंने साइन किया था, दे अफर्म्ड कि हाँ भाई हम लोग कंप्लाई कर लेंगे कोड ऑफ कंडक्ट. तो इस बार फिर से अफर्मेशन लेने की जरूरत है क्या? मेंबर्स आर सेम, कोई चेंज नहीं है. आंसर इज यस. This affirmation is required to be taken on an annual basis. So mark it very important. On an annual basis आपको ये affirmation लेना है, irrespective of the fact the members of the board are same for the previous year and for the current year. Annual reports of the company shall contain a declaration. The code of conduct shall be posted on the website. The code of conduct shall suitably incorporate all the duties which are required to be followed and as given under law. Under Companies Act. So, senior management team, core management team including board of directors. जहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि board of directors and the senior management. The senior management includes who? The core management team, the team leads, excluding board of directors. ठीक है, तो these are senior management. Next is vigil mechanism. विजिल मैकेनिज्म में सबसे पहली बात आती है मैकेनिज्म. ये है क्या? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट अ जेन्युइन कंसर्न. अगर हमको लगता है कि देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये अमित भाई जो है, ये अमित भाई एक नंबर के कामचोर इंसान, कुछ काम करते नहीं, जो लोगों का काम करते हैं उसके ऊपर ऐसा ठोक जमा करके बैठे, मैंने काम किया मैम, मैंने काम किया. ये जेन्युइन कंसर्न है. अरे ये नेम गेम कर रहे हैं, काम करते हैं कुछ नहीं. अब ऐसी जो जेन्युइन कंसर्न है वो एम्प्लॉइज हमको आकर के बकायदा बता सकता है. इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं विजिल मैकेनिज्म. ठीक है,
इसको हिंदी की भाषा में कहने जाए तो चुगली है। सेफगार्ड। अब देखिए अमित भैया के लिए हम लोगों को बाहर आरती मैडम ने कहा कि यार ये मैम ये अमित भैया जो है वो बिल्कुल काम करते हैं नहीं, बस क्रेडिट लेकर के जाते हैं। सही बात नहीं। अमित इतना भड़क गया, इतना भड़क गया, अब इतना भड़क गया, आरती को ना भुलपट्टी दे बैठा। आरती को कहता है बाहर मिलो, मैं बताता तुमको, तुम मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी कंप्लेन करोगी। अब ये देखो, मेरे पास अगर एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं होगा तो कौन करेगा कंप्लेन? तो वो लोग कहते हैं कि अगर विजिल मैकेनिज्म है तो आपको एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी रखना है अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है शैल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड शुड बी रिटर्न इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। मैम अगर ये कंपनी के इंट्रानेट पे हुआ तो नहीं चलेगा। अगर ये जो हम लोगों ने स्कीम बनाई है या फिर ये मैकेनिज्म बनाया है, इफ इट ऑल वी हैव प्लेस दिस इन द इंट्रानेट ओवर द ऑफ द कंपनीज, नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनीज ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज, रेगुलेशन 16C 24 एंड 46। यहाँ पे हम लोग कहते हैं एज पर रेगुलेशन 16 मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन कोई ऐसी सब्सिडरी जिनका नेटवर्थ या टर्नओवर 10% या 10% या इससे ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कंसोलिडेटेड नेटवर्थ और टर्नओवर। ठीक है, 10%। फॉर रेगुलेशन 24 वेयर एटलीस्ट वन आईडी ऑन द बोर्ड शैल बिकम द लिस्टेड एंटिटी का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर, उस रेगुलेशन के केस में मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन अ कंपनी अ सब्सिडरी हुज नेटवर्थ या टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ और टर्नओवर। 20%। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैम ऐसा करना क्या है? ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी एंड जहां जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, minutes of the board meeting of this unlisted subsidiary shall also be placed at the board meeting of the listed holding parent company. Any significant matters or the transactions entered by this unlisted subsidiary shall brought to the notice of the board of directors of the listed entities. Significant transactions here means a transaction which is more than 10% of the total revenue or the expenditure or the assets or the liabilities as compared to the previous year. Limited review of the components. Listed company के जो components है, limited review shall be done for all these entities whose accounts are being consolidated with the listed entity. The statutory auditor of the listed entity shall undertake a limited review of the audit of all the entities. Basically आज अगर मैं holding company की subsidiary company holding company की statutory auditor हूँ, आप हो मेरी ही subsidiary company के auditor. Now it is my duty to overview the process of audit which you have followed for that unlisted subsidiary and the consolidation process जो भी AS या इंडियस के हिसाब से हो रहा था। नेक्स्ट, यू ऑल्सो फॉर सब्सिडरी विल सी अगर सेलिंग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया है, सेलिंग, डिस्पोजिंग और लीजिंग ऑफ द असेट विच इज मोर देन 20% ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया है, दिस कैन नॉट हैपन विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर ये विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स हो गया तो ये गलत चीज़ है। ऑडिट कमेटी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ स्ट्रक्चर में कहता है मैम मेंबर्स को इत्तला करना ही चाहिए, बट हाँ अगर ये अप्रूव्ड है बाय एनसीएलटी एंड कोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अगर ये आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कोई स्कीम के अंदर लागू है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेंबर्स का रेजोल्यूशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या था? अगर आपने सेल किया है, डिस्पोज किया है, लीज किया है कोई भी एसेट विच इज मोर देन 20% और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मैम कितना ओनिंग था? 80% ओनिंग मेरा था। अब मैंने सारे शेयर्स डिसइन्वेस्ट कर दिए एंड मैंने मेरा ओनिंग कम कर दिया है, तो डोंट यू फील ये मेरी आई बीइंग लिस्टेड कंपनी, मेरे शेयर होल्डर्स को ये पता होना चाहिए। तो कहता है डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी हेल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी टू रेड्यूस टू द होल्डिंग्स टू लेस देन इक्वल्स टू 50%। पहले ये इक्वल्स टू नहीं था, अब ये इक्वल्स टू आ चुका है, पहले सिर्फ था लेस देन 50%, अब वो लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू 50% और सीजिंग द कंट्रोल, तो फिर मुझे यहाँ पे मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन करवाना चाहिए। हाँ, अनलेस दिस इज अंडर एन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ कोड और एनसीएलटी और दिस इज अंडर एन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट, सेक्रेटोरियल ऑडिट। यहाँ पे 60 डेज का फंडा उन्होंने ऐड किया है। रेगुलेशन 24A ये लोग कहते हैं सेक्रेटोरियल ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल हैव इट, ये होना ही है। मैम कब होना है जरा देखते हैं।
Every listed entity and its material unlisted subsidiary incorporated in India shall undertake a secretarial audit and shall annex the secretarial audit report given by the company secretary in practice in such a form as may be specified with the annual reports of the listed entities. मैंने कहा ठीक है, बट करे तो कब करे, सुनो तो सही. Every listed entity shall submit a secretarial compliance report in the form as may be specified within, very important, पहले उन्होंने ना टाइम डिसाइड नहीं किया था, उन्होंने बोला था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, द टाइम विल आल्सो बी डिस्कस लेटर. अब उन्होंने डिस्कस किया है टू द स्टॉक एक्सचेंज एज मे बी स्पेसिफाइड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 days from the end of financial year. Again very important for MCQ कि ये सब्सिडरी को अपने सेक्रेटोरियल ऑडिट का रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को कब देना है, विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल. नेक्स्ट आता है कमिटी के नाम पे. पहली बात, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस कमिटी विल बी वर्किंग फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, नॉमिनेशंस ऑफ द ऑडिटर एंड द रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Point number 1, every public listed entity shall constitute this nomination and the remuneration committee. NRC कहते हैं हम इसे, nomination and remuneration committee. At least 3 directors should form part of this committee. इसमें से if at all the company is having special right shares, तो 2/3 of the members must be IT. If the company is not having special right shares, then 1/2 of the members shall be IT. Guys, you should also refer to the corporate government, मतलब बेसिकली कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको भी एक बार रेफर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. हाँ, मूविंग अहेड कि मैम इस कमिटी का क्या रोल है. रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, क्वालिफिकेशन डिसाइड करना. सो फॉर्मुलेटिंग द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, criteria for evaluating performance and independence, devising the policy of the board diversity, identifying the person who all are qualified to act as the director and who may be appointed by the company as a senior management, whether to extend or continue the term of appointment of any director, independent director on the basis of the performance evaluation, recommend to the board all the remuneration in whatever form payable to the senior management. तो ये है role of NRC. Now going ahead to SRC. You remember जब भी हम लोगों ने 5 चेयरमैन और 10 मेंबर्स के बारे में बात की थी कि 1 डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ चेयरमैन फॉर 5 कमिटीज, 10 कमिटीज में मेंबर्स. अब यहाँ पे उसमें मैंने आपको बोला था कि उसमें 2 ही कमिटीज ऐड होती है, ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी. तो ऑडिट कमिटी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, अब आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. सो देखो वो आ गया. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का मतलब होता है कि ये हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस को सुनेगा. सो एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट constitute this committee. Chairman must be non-executive director. The company having special right shares must have 2/3 of the members as independent. Not having special right shares, half as an independent. Committee shall meet at least once in a year. Chairman shall be present at annual general meeting to answer the queries. What is the role of this committee? SRC का रोल क्या है? जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का रोल क्या था, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज. अब यहाँ पे वो लोग कहते हैं सॉल्विंग ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, द सिक्योरिटीज होल्डर्स, जो डिविडेंड डिक्लेयर, शेयर्स, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इसके बीच में जो जो प्रॉब्लम्स है वो ये कमेटी सॉल्व करती है. रिव्यू ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर एक्सरसाइजिंग द वोटिंग पावर्स, रिव्यू द अधेरेंस टू द सर्विसेज, अधेरेंस ऑफ द सर्विस स्टैंडर्ड्स which are adopted by the listed entity for formulating the share transfer processes, reviewing the various measures and the initiative taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividend. बोलते हैं कंपनी क्या कर रहा है in order to reduce this unclaimed dividend and the timely basis. Next आता है risk management committee, a super duper highly important question. एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन के नाम पे बुक करो. पहले ये कुछ और था, अब ये कुछ और है. द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इसमें हम लोग बोलते थे कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनी शैल फॉर्मुलेट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. अब हम लोग कहते हैं टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज शैल फॉर्मुलेट रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट. विथ मिनिमम 3 members and majority of the members shall be from board. The companies with special right shares shall have
At least 2/3 of the members which are ID and companies without special right shares must have at least one ID. पहले बच्चों ये वाला पॉइंट एडेड नहीं था, अब ये वाला पॉइंट एडेड है. वेरी इंपॉर्टेंट. द कंपनी not having special right shares, at least one independent director shall be a person on the board for risk management committee. अब आगे, the chairman of the risk management committee shall be the member of the board of the directors and senior executive of the listed entity may be the member of the committee. पहले ये था RCM should meet at least once in a year. अब हम लोग बोलते हैं मीटिंग must be held twice in a year. पहले ये था the committee should meet at least once in a year. अब वो लोग बोलते हैं the meeting should be held twice in a year. पहले क्या था साल में एक बार, अब बोलते हैं साल में 2 बार मिलना है. So meeting shall be held twice in a year with a gap not more than 180 days shall elapse between 2 meetings. Quorum कितना होना चाहिए 2 और 1/3 whichever is higher including 1 member from the board. Board of directors shall define the roles and responsibilities of this risk management committee. ये roles and responsibility में mandatory role and responsibility है to review the cyber security, especially over the risk over the cyber security. Next, it may be noted that the roles and responsibility of RCM shall mandatorily include the performance of the function as specified under the Part D of Schedule 2. Risk Management Committee has a power to seek information, ये same point है, from the employees, obtain legal advices and the professional advisors to secure attendance from the outsiders with relevant expertise as necessary. So this is a very important point. आप देख रहे हो everything is with green, 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 highly important. Next आता है, here we talk about statement of deviations or variations. What is statement of deviation? That statement of deviation का मतलब होता है where the company has taken the money, stating the company will utilize the money, raise funds, utilize the money for expansion, but the company fails to utilize the fund for the purpose for which it was taken. तो अब क्या करेंगे, मैंने बोला था मैं एक्सपेंशन करूंगी बट ये पैसों से हम लोगों ने कर लिया इन्वेस्टमेंट, भाई ये तो गलत किया. अब that is where the company should file the statement of deviation until and unless till the period where this is made good. So listed company shall submit to stock exchange on a quarterly basis for the public issue, right issue or the preferential allotment the deviation in the utilization. Category wise variation in the project. जैसे भी एग्जाम्पल हमने कहा था एक्सपेंशन करेंगे, बट एक्सपेंशन कौन से वर्टिकल्स के लिए? We will increase garments, we will increase hospitals, we will increase या फिर we will invest our money in hotel industry. तो हम लोगों ने वेरिएशन मतलब प्रोजेक्ट करके रखा था, प्रोजेक्ट को पार्क करके रखा था, इतना इतना पैसा यूज होगा. 100 करोड़ फॉर एजुकेशन, 100 करोड़ फॉर होटल, 100 करोड़ फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड स्टफ. बट हमने क्या किया, हम लोगों ने 250 करोड़ फॉर एजुकेशन यूज कर लिया. सो दिस इज एक्सपेंशन ही कर रहे हैं बट प्रोजेक्ट वाइज वेरिएशन हो रहा है, उसका डिटेल्स भी देना है. नेक्स्ट, कब तक देंगे? Until unless आपने सेम पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर दिया. If the entity has raised funds through the preferential allotment or QIBs, it shall disclose every year the utilization of such fund in the annual report. Very important. Next, information to shareholders. क्या information shareholders को जानी चाहिए? Regulation 36 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स. बेसिकली शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए हु आर द ह्यूमन एजेंट्स ऑफ द कंपनी. सो एक प्रकार का क्वालिफिकेशन, रेज्यूमे, ये सब कुछ, ब्रीफ रेज्यूमे, नेचर ऑफ एक्सपर्टाइज, उनके फंक्शनल एरियाज क्या है, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है क्या ये डायरेक्टर का कंपनी के साथ, द नेम ऑफ द लिस्टेड कंपनीज वेयर द पर्सन होल्ड्स अ डायरेक्टरशिप, कोई कौन सी कमिटी में ये मेंबर है, कौन सी कमिटी में ये चेयरमैन है, शेयर होल्डिंग्स ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द शेयर्स. ये क्या बात करता है? बोलता है हर बार कंपनी को, इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कोई ह्यूमन एजेंट को या फिर कोई इंसान को ये सारे पावर डेलीगेट करने चाहिए. हु विल लुक इनटू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, यहाँ पे ये नहीं है, shall delegate the powers to either a committee, to a compliance officer, to the registrar of issue or to any agent about what कि ये सारी अथॉरिटीज जो है shall attend all the formalities which are associated with the share transfer, transmission और transportations of the shares. ये सब जो बोर्ड है या फिर जो कमिटी है shall at least one in a fortnightly इन लोगों को ये सारी चीज़ डिस्कस करनी है. एंड बोर्ड मीटिंग के पहले पहले ये सारा चीज़ उन लोगों को
बोर्ड मीटिंग में बताना है, ठीक है। सो delegated authority shall report on the transfer of the security to board in each meeting. Next we talk about compliance certificate. This is a compliance certificate which should be signed by CEO, CFO to the best of their knowledge that they believe that they have reviewed the financial statements and the cash flow for the year, and it does not contain any material untrue or misleading statements. It presents the true and fair view of the affairs of the listed entities. No transactions which are illegal in nature or fraudulent in nature are being illegal. यहाँ पे आता है illegal are being transacted in the organization. They accept the responsibilities for establishing and monitoring IC for financial reporting. They have to indicate to the auditors and the audit committee any significant changes in internal control, in accounting policies, any significant fraud involving management or employee which have been noticed. पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2, इसके बारे में जो मैं आगे बात करके आई थी, अंडरलाइन करवाया था. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू सीईओ एंड सीएफओ इज इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. द कंप्लायंस सर्टिफिकेट हैज टू असर्ट, हम लोगों को मतलब मैनेजमेंट को ये बताना है, ये कहना है कि हाँ दे हैव इवैल्यूएटेड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. एंड उन्होंने ये भी बोला है विल फर्दर स्टेट दैट कि अगर कोई डेफिशिएंसीज पाई गई है तो हम लोगों ने इसको नोटिस करके सुधारा है. विल ऑल्सो टेक स्टेप्स, सुधारा है, टू रेक्टिफाई दीज डेफिशिएंसीज. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डिस्कशन. द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. अ वेरी छोटा सा कंसेप्ट बट पूछा गया कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट जब भी मिलता है बोर्ड मीटिंग में तो दीज आर द मैंडेटरी डिस्कशन और द एनालिसिस एरिया विच द बोर्ड शुड डू. इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, थ्रेटनिंग सिचुएशन क्या है, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस क्या है, आउटलुक, इंटरनल कंट्रोल, डिस्कशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मटेरियल डेवलपमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स, द डिटेल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस. एंड ये चेंजेस कितने, 25% प्लस और माइनस. जैसे कि लास्ट टाइम रेशियोज वर 10%, इस बार रेशियोज इज 2%. अरे यार ये तो बहुत ही चेंज हो गया. सो यहाँ पे इफ एट ऑल कोई की फाइनेंशियल रेशियोज हैज अंडरगॉन अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज विच इज मोर देन और इक्वल्स टू 25% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो इसके बारे में डिटेलिंग्स देना, इसके बारे में डिस्कशन करना. डिटेल्स अबाउट द चेंजेस इन द रिटर्न्स, नेटवर्थ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, ये सारा चीज किस में आएगा, द कंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. इसके बाद आता है ऑडिटर सर्टिफिकेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. गाइस ऑडिटर्स जब ये सर्टिफिकेट देता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, व्हेनेवर द ऑडिटर इशू सर्टिफिकेट दीज आर ओनली ऑन द फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस. वी नेवर गिव यू अ श्योरिटी कि हाँ ये ऐसा ही है. आई एम नेवर ट्राइंग टू गिव यू फ्यूचर वायबिलिटी के ऊपर ओपिनियन. तो अगर मुझे कोई भी चीज़ एज पर रेगुलेशन नहीं मिली, उस चीज़ के लिए आई विल बी एक्सप्रेसिंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन. A negative report will be given. मैम फॉर एग्जाम्पल कब देंगे क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट, जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 50% से कम है, क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेशियो डिस्टॉर्टेड है, चेयरमैन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑडिट कमेटी मिल नहीं रहा है, नेसेसरी पावर्स जो है वो नॉट वेस्टेड, इन्होंने एग्जामिन नहीं किए हैं, द टाइम गैप बिटवीन बोर्ड मीटिंग्स इज मोर. तो अगर ऐसा गलत का मतलब नॉट एज पर रेगुलेशन हुआ है तो ऑडिटर विल एक्सप्रेस इधर अ क्वालिफाइड और एन एडवर्स रिपोर्ट. अदर डिस्क्लोजर्स अगैन इंपॉर्टेंट गाइज, इसके नीचे ये वाला पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे. अदर डिस्क्लोजर्स क्या बात करता है, पॉइंट नंबर 1, डिस्क्लोजर्स विद रिगार्ड डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी. हम लोग बोलते हैं द टाइमली बेसिस, ensure the timely accurate disclosure of all material matters of the listed entities in the following manner. Information shall be prepared and disclosed that हम लोगों ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ना, दैट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस, उसका डिस्क्लोजर्स भी प्रॉपर और चैनलाइजेशन सही तरीके से करना चाहिए. हर एक शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना है इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो भी बोर्ड ने स्पेसिफाई किया, सेबी ने, to the recognized stock exchange within 15 days from the closure of the quarter. Details of all the material transactions, material related parties will be disclosed herein. The report shall be signed either by the compliance officer or the
Chief Executive Officer, very important, the report shall be signed by CEO or CEO of the company. Disclosure of the policies dealing with related party transactions on the website and the web links shall be attached. Disclosure of the transaction with any person or entity belonging to the promoter or the promoter group which holds 10% or the more sub shareholdings in the listed entity. इसके बारे में भी डिटेल्स देना है सेबी को. The listed entities the listed entity shall submit within 30 days from the date of publication of standalone and consolidated financial statement result for the half year. Disclosure of related party transactions on the consolidated basis in the format as may be specified in the relevant accounting standard to the stock exchange and should also be published over website, provided that a high value debt listed entities shall submit such disclosure along with its standalone financial statements for the results of half year. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. व्हाट अबाउट द लिस्टेड मतलब हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, उसके लिए क्या होगा, तो उन लोगों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के व्यू पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो डिस्क्लोजर्स है वो अलॉन्ग विद स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड. नेक्स्ट आता है ये डिस्क्लोजर्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. हम लोग कहेंगे कि वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 133 दैट इज इंडियस. अगर कहीं पे कोई डिविएशन है तो उसके बारे में भी बताना कि व्हाई दे हैव यूज्ड ऑल्टरनेटिव मेथड एंड व्हाई मैनेजमेंट फील्स दैट दिस ऑल्टरनेटिव मेथड इज मोर रेलेवेंट टू एक्सप्रेस द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. Next, we talk about the disclosures in relation to sexual harassment of women at workplace. This is something called as POSH. Guys, आपने सुना होगा for every company now compulsory applicability हो गया है of POSH. What is POSH? Prevention of sexual harassment. अगर कोई कंपनी में इस प्रकार की कोई कंप्लेंट्स लॉन्च हुई है तो अदर डिस्क्लोजर में ये भी हमको बताना पड़ता है द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स स्टिल पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर व्हिच आर रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस. अमॉन्ग्स द मैटर दिस ऑल्सो शुड बी गिवन. क्या लिखना है, पहला नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज एंड द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग. Done. So these are other disclosures. Now moving to the last part of audit committee and the corporate governance. Basically आप मॉड्यूल में देखते जाओगे, this is the first part and this was once upon a time added as a amendment in your notes. इसके ऊपर कभी भी अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, इतने हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं मिले हैं. आरटीपी में इसका एक क्वेश्चन जरूर देखने मिला था. सो मेरे हिसाब से दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. मैम क्या है ये लास्ट वाला कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी. अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी, आप हमारी कंपनी को छोड़ करके जा रहे हो, दिस विल एक्चुअली इम्पैक्ट द शेयर होल्डर्स का फीलिंग. स्टॉक मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ही इमोशनल है गाइस. जरा सा चेंज इन द कंपनी इनसाइड और आउटसाइड द फैक्टर्स, कुछ भी चेंज हुआ, स्टॉक मार्केट दे धनाधन फ्लक्चुएट होता है. So in case the auditor is vacating the office, resign कर रहा है, now you can very well understand कि स्टॉक मार्केट में कितना जोरदार इम्पैक्ट होगा. तो सेबी आता है पिक्चर में और सेबी कहता है रुको, जाने वाले को कौन रोक सकता है, बट अगर आपको जाना है तो रिपोर्ट दे करके जाइए. ठीक है. So this is a new circular which is applicable on the listed entity and its material subsidiary in case when if the auditor is resigning before the completion of the financial results, before the audit. There are few disclosures which are required to be made. Basically यहाँ पे 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. पहला, लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है. सबसे पहली बात, लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेक टाइमली डिस्क्लोजर. बोलता है 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारा ऑडिटर हमें छोड़ करके जा रहा है. Not later than 24 hours from the receipt of such reason of resignation from the auditor to stock exchange. ये सारी चीजें उनको नोटिस में भी लिखनी है, which is notice which is given to the shareholders for calling AGM for appointment of another auditor.
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द न्यू अपॉइंटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन एंड टर्म फिक्स कर. Audit committee shall also review the performance and the independence of the new auditor. Next, responsibility of the auditor. As the auditor resigns before the completion, this is a serious matter and it seriously hampers the investors' confidence. लोगों को डर लगने लगेगा यार कि हमारा बाहुबली अगर ये हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड होगा. तो फिर यहाँ पे उनको टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कि कुछ हम लोग रिपोर्टिंग दे करके जाए. तो वो लोग कहते हैं डिपेंड्स अपॉन आप कब हमें छोड़ करके जा रहे हो. इफ एट ऑल यू आर वेकेटिंग द ऑफिस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड या फिर विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अगर आप हमको छोड़ करके जा रहे हो तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट तो एटलीस्ट दे करके जाओ सो दैट माई इन्वेस्टर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर तो आप उस क्वार्टर का एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट दे करके जाएंगे. अगर आप रिजाइन कर रहे हो आफ्टर थर्ड क्वार्टर एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर ऑल 3 previous quarters are issued तो हम लोग कहेंगे कि बॉस तो आप लास्ट क्वार्टर का भी LR दे करके जाओ एज वेल एज पूरे साल भर का ऑडिट रिपोर्ट भी दे करके जाओ. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी तीनों क्वार्टर्स का रिपोर्ट दिया हुआ है. मैम हैड इट बीन द केस, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस बना रही हूँ बच्चों, ये है हमारा ऑडिटर. अगर इस ऑडिटर ने सिर्फ थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट दिया था, मैम फर्स्ट और सेकंड इसने नहीं दिया था, फर्स्ट और सेकंड का रिपोर्ट ये भाई साहब ने नहीं दिया, अब वो फोर्थ क्वार्टर में हमको छोड़ करके जा रहा था. क्वेश्चन ये उठता है क्या ये भाई साहब लास्ट क्वार्टर का LR दे एज वेल एज पूरे साल भर का AR ऑडिट रिपोर्ट दे? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज नॉट गिवन द LR लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर ऑल द प्रीवियस 3 क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आता है? ऑफ द फाइनेंशियल डन. सो इसके ऊपर मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, जस्ट मेक यू गो थ्रू दिस. दिस इज अ मॉड्यूल. Go through the recent module guys which are uploaded on the website. Here question number 8 देखना है हमें. Question number 8. PQR auditor of XYZ has signed the limited review for second and third quarter. मतलब ये बिंदास हमको बता रहा है फर्स्ट क्वार्टर का साइनिंग नहीं हुआ है. Whether the auditor is liable to issue the limited review report for the fourth quarter before resignation? No. Why? Because the limited review report for all the 3 previous quarters are not signed by him. समझा? तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वार्टर की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं. So here is the answer. All the listed entities, material subsidiary, while fourth था क्या 6 था? ये था ना. हाँ. While appointing and reappointing as an auditor shall ensure the compliance in case of the auditor has signed the limited review report or the audit report for the first 3 quarters. Then the auditor shall be liable before such resignation issue the limited review report या फिर AR for the last quarter of the financial statement as well as audit report for the full financial year. In the present case, because they have only signed second and third, the auditor is not liable to sign. Got it? चलो वापस चलते हैं यहाँ पे. Next, other conditions pertaining to resignation. Point number 1, the statutory auditor should report to audit committee all the information which they asked for but they haven't received. तो यहाँ पे है हमारा ऑडिटर, हमारी ऑडिटर CAKS चेयरमैन को बताएंगे कि मैडम सर हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी बट हम लोगों को मैनेजमेंट से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इस कारणवश हम वेकेट करना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिट कमेटी का मीटिंग होल्ड करेगा चेयरमैन विदाउट इवन वेटिंग फॉर द एनुअल मीटिंग्स, क्वार्टरली मीटिंग्स. इफ द ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मांगी मैनेजमेंट ने नहीं दी, ये ऑडिट कमेटी के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं.
ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, ये सारा इवैल्यूएट करने के बाद, मैनेजमेंट से बात करने के बाद, विल कम्युनिकेट इट्स व्यू टू द ऑडिटर एज वेल एज टू द मैनेजमेंट। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड आपको एलआर या एआर देने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैंने अभी अभी बोला कि रिपोर्ट दे करके जाइए, तो यहाँ पे द ऑडिटर कैन मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कैन बी इशूड। ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड इट्स मटेरियल सब्सिडरी। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ऑडिटर को एकदम से जाने तो नहीं दे रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं जाने से पहले सर रिपोर्ट दे करके जाओ। मतलब लिस्टेड कंपनीज की अभी भी रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर विच दे नीड फॉर प्रोवाइडिंग दैट रिपोर्ट। सो ऑडिटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी लिस्टेड कंपनी या मटेरियल सब्सिडरी से, ये उनको डिस्क्लोज करना, as well as to provide all the information and explanation documents to the auditor for issuance of LR and AR as may be stated. Listed company information. Listed company shall ensure, पता है मैंने आपको बोला ऑडिट कमेटी अपना कम्युनिकेशन करेगा टू द ऑडिटर एज वेल एज मैनेजमेंट। ये जो ऑडिट कमेटी का रिव्यू था ना, ये जो ऑडिट कमेटी का व्यू था जो कंपनी को मिला, दिस कंपनी नाउ शुड टेक अ चार्ज टू डिस्क्लोज दिस audit committee's view to stock exchange within 24 hours. Next point, in case the listed entity is not mandated to have audit committee, the board of director shall ensure the compliances. अगर listed entity में AC नहीं है तो ये सारा compliances BOD देखेगा। स्टॉक एक्सचेंज को ये पूरा ख्याल रखना है कि ये जो रेगुलेशन हम लोगों ने नया ऐड किया, ये सारे ही कंपनीज को, लिस्टेड एंटिटीज को पता चल जाए, तो डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन। This provision shall not apply if the auditor is disqualified under section 141. अगर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ये जा रहा है तो बॉस आपको ये रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये रेगुलेशन सिर्फ तभी ही आएगा जब रेजिग्नेशन। Everyone understanding this? पक्का sure? Now let me make you all go through couple of questions more. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, बेसिकली क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर इब्राहिम, आरटीपी का क्वेश्चन है। मिस्टर इब्राहिम भाई साहब दो कंपनी में एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए थे, इन न्यू लिमिटेड एंड इन ओल्ड लिमिटेड। बोथ द कंपनीज वर हैविंग देयर बेस इन चेन्नई। ठीक, दे हैड रिसेंटली लिस्टेड, दोनों ही लिस्टेड। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर इब्राहिम साइन द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स फॉर ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर मतलब क्या, 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्वार्टर के लिए इसने साइन किया, एंडेड 31st of March फॉर बोथ द कंपनीज। ओविंग टू हिज पर्सनल कमिटमेंट्स वर्कलोड बहुत बढ़ गया, ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। तो दो कंपनीज हैं, दोनों ही लिस्टेड है, न्यू एंड ओल्ड। न्यू में कहता है कि काम बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से हम रिजाइन करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट कहता है कि ऐसा थोड़ी चलता है, हमारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अब शांति से पहले रिपोर्ट देकर के फिर जाना है तो जाइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ओल्ड लिमिटेड में क्या हालचाल है, ठीक है, यहाँ पे बट मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन। न्यू के लिए ये बात हुई। ओल्ड के लिए क्या बोल रहा है, देखिए, इब्राहिम कंटिन्यू टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर ओल्ड, बट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मिसेस डब्ल्यू, वाइफ ऑफ मिस्टर इब्राहिम, बोरोड 6 लाख रुपीज फ्रॉम द कंपनी फॉर हर पर्सनल यूज। एंड जैसे ही उसको पता चल गया कि हमारे स्पाउस वाइफ ने 6 लाख रुपया बोरो कर दिया है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का दायरा आ जाएगा 141(3)(d)(2). सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मिस्टर इब्राहिम इमीडिएटली इन्फॉर्म द कंपनी कि बॉस मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ, अब मैं लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट नहीं दे सकता। वेदर द कंटेंशन, अभी यहाँ पे भी मैनेजमेंट मना कर रहा है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं जाने नहीं देंगे तुझे, नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे, हिंदी से बैर कर लेना, देंगे तुझे, ठीक है, जाने नहीं दे रहे। तो अब मुझे बताओ ओल्ड में क्या हो रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए। What should be the case? Very rightly said guys, यहाँ पे हम आपको जाने नहीं देंगे बिकॉज आपने क्वार्टर 1, 2, 3 का रिपोर्ट साइन किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट
आपको फोर्थ क्वार्टर का LR एज वेल एज पूरे साल भर का AR देना पड़ेगा. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द ऑडिटर वेकेट्स द ऑफिस बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. तो ओल्ड से तो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4 के तहत इमीडिएट वेकेशन ऑफ ऑफिस होना चाहिए. तो यहाँ से आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग होना है. So that was the question, which is very important, asked in RTP May 21. Very high chance that they can repeat this question in your suggested in your main examination May 22 onwards. So that was a quick revision of audit committee and corporate governance along with solving questions here and there, including all the amendments. I hope guys this session is helpful for you all. Do like the video, subscribe to the channel and comment that in case you need any further assistance from our side. मैं ये सिलसिला शुरू रखने वाली हूँ विथ रिगार्ड्स टू द क्विक रिवीजन ऑफ द फर्दर चैप्टर्स. अगर कोई चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है तो कमेंट करना ना भूलें. दिस इज CA खुशबू संघवी साइनिंग ऑफ. यू ऑल कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय.